ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറേൻ്റെ പാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ ബോധ് ഗയയിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബീഹാറിലുള്ള മഹാബോധി മഹാവീര ടെമ്പിളിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും പോയി നോക്കട്ടെ. പിന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര സെക്യൂറാണ് കേട്ടോ. ക്യാമറേൻ്റെ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക്, ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാമറയ്ക്ക് വരുന്നത് 100 രൂപയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും പോയി നോക്കട്ടെ. എന്താ അവിടുത്തെ സ്ഥിതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടിപൊളി ടെമ്പിളാണെന്നാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഗൈഡിനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതായാലും കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കാം. ഉള്ളത് ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ ഗോപ്രോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചാർജർ, ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ, നമ്മളെ ബ്ലൂടൂത്ത് വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണ്, ഫോണ് ഒക്കെ അവിടെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കേട്ടോ ഷോപ്പുകൾ, ഒരുപാട് ആൻറ്റി ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ ക്യാമറയിൽ ചാർജൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ചാർജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് എൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തട്ടി. അപ്പോൾ ഏതായാലും ക്യാമറയിൽ ചാർജ് ആക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ചാർജ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി കടമ്പ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ബോധ് ഗയയിലുള്ള മഹാബോധി ടെമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളെ ഗൗതമ ബുദ്ധന് ബോധോദയം ലഭിച്ചത് നമ്മളെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ആലും പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയും കിട്ടും. നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ ഗൈഡുകൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് അറിയാം. ഞാൻ ഏതായാലും ഒരാളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, सबसे पहले भगवान बुद्ध का इनलाइटमेंट प्लेसेस पे आए आप लोग दर्शन करने के लिए, आप दर्शन करने के लिए वेलकम करता हूं सर। ये जो बड़ा सा टेम्पल देख रहे हैं, ये बड़ा मंदिर का नाम है महाबोधि मंदिर। महा का मतलब महान, बोधि का मतलब ज्ञान। राजकुमार सिद्धार्थ को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। टेम्पल के बैक साइड में बौद्ध ट्री है। ये जो टेम्पल देख रहे हैं, ये टेम्पल का निर्माण 2 राजाओं ने मिलकर किया। ये टेम्पल का 30 फीट का निर्माण सम्राट अशोक राजा किए थे। मगध के जो राजा थे सम्राट अशोक, वो इस टेम्पल को ओनली 30 फीट बनाए थे। 30 फीट का जो पार्ट है वो 2300 वर्ष पुराना है। और ऊपर के 150 फीट राजा समुद्रगुप्त बनाए थे 4th सेंचुरी AD में। ऊपर का पार्ट 1600 वर्ष पुराना है। मंदिर के जो टॉप का कलश देख रहे हैं वो 289 kg का गोल्ड है, जो थाईलैंड का राजा 12 नवंबर 2013 को दान में दिए। जब ये मंदिर बन के कंप्लीट हो गया तो 12th सेंचुरी 5 AD में एक मुस्लिम राजा यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो 6 महीना तक वहाँ का लाइब्रेरी जलते रहा। बख्तियार खिलजी इस टेम्पल को ऊपर से 30 फीट मंदिर को तोड़वा दिया और 30 फीट के लेवल से इसको पूरा मिट्टी से कवर्ड कर दिया था। तो 12th सेंचुरी से 18th सेंचुरी 600 ये टेम्पल पूरा मिट्टी के अंदर कवर्ड था। 1876 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट आए थे यहाँ पर, जिनका नाम था अलेक्जेंडर लॉर्ड कानिंघम। जब कानिंघम आए तो 30 फीट टूटे हुए टेम्पल को बनवाए और इस टेम्पल को पूरा खुदाई करवाए, मंदिर का पूरा उत्खनन करवाए। 1876 से लेके 1883 तक खुदाई चला। 7 साल में मंदिर का सारा मिट्टी निकाल दिया गया। हम लोग टेम्पल ऊपर के लेवल से नीचे का लेवल 30 फीट डाउन में आकर देख रहे हैं। खुदाई की वजह से ये टेम्पल गड्ढा में चला गया। भगवान बुद्ध आए थे 6th सेंचुरी BC में, लगभग 2600 वर्ष पहले। बुद्ध के समय में ये पूरा फॉरेस्ट था, जंगल था। ये जंगल का नाम था उरवेला फॉरेस्ट। ये उरवेला फॉरेस्ट में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 7 जगह पर 7 सप्ताह ध्यान किए। वो 7 जगह मैं दिखाऊंगा, लेकिन मंदिर के अंदर जाएंगे और भगवान बुद्ध का अंदर का स्टैचू का दर्शन करेंगे। मंदिर के जो अंदर में स्टैचू है वो 1000 से सोल्ड है, 1000 वर्ष पुराना है।
अंदर का मूर्ति को बनाए थे वेस्ट बंगाल के राजा पाल वंश के राजा महिपाल बनवाए थे 10th सेंचुरी एडी में। ब्लैक स्टोन का मूर्ति है, उस पर गोल्डन पॉलिश किया हुआ है और फोरहेड पे डायमंड है और गोद में भिक्षा पात्र है और उस मूर्ति का जो फेस है वो ईस्ट की ओर है। अंदर जाके पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद मैं सेवन മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക, ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അമ്പലത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാസ് ഏതായാലും നമുക്ക് ആ പാസ് പാസ്വേഡ് 1 മിനിറ്റ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ബുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താ മെഡിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വദേശികളായിട്ടും വിദേശികളായിട്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്യൂവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്യൂവിൽ തന്നെ 2 പോലീസ് ചെക്കിങ് ഉണ്ട്. കാരണം ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ളൊരു പോലീസ് ചെക്കിങ്ങും പിന്നെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ലേഡി കോൺസ്റ്റബിളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല സെക്യൂരിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഗോൾഡൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. अभी मैं मंदिर का बैक साइड में ट्री दिखाऊंगा जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ഓക്കെ वो ट्री बौद्धि ट्री जो श्रीलंका से लाया गया पेड़ है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। ഓക്കെ Enlightenment live important. You name nation, you happy to you puja prayer. പൂജ പ്രയർ. ഓക്കെ, Coming from കേരള. one blessing. Buddhang namami, ബുദ്ധൻ നമാമി Dhammang namami, बुद्धं Sangham नमामि, namami. संबंध नमामि. Savityo vivajantu sabbarogo vinasato mahate bhuntantra sukhi dirghayo kubo abhivadana silacha nityam buddha avcharinu chattaro damudanti ayubanu sukhme sadhu sadhu long life happy. I am monk, I am here student, I am Okay. 10 disciple. So this 2 temple closed, 7 forward this temple open. You happy to you give money, I am a study, I am 10 disciple. No happy, no problem. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. No, you go. This leaf, you ये पत्ता को रख लीजिए बोल रहे हैं, ആ और ये पत्ता को जो है ना ले जाइएगा। വൺ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ ഏതായാലും കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, अशोक ने इस टेम्पल को 30 फीट बनाया था, 30 फीट बनाया था और 30 फीट बनाने के बाद इस मंदिर को चारों तरफ से अशोक का रेलिंग करवाया था। इसमें से 5 जो रेलिंग है वो ओरिजिनल है, जो अशोक कालीन है। ये 2300 सोल्ड है, अशोक सम्राट के द्वारा बनाई गई। फर्स्ट ഓക്കെ, सेकंड वाला ആ और बाकी का 3 उधर में। ഓക്കെ. മൂപ്പരെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എത്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. तो भाई करा दिए, पूजा भी करा दी, तो इसका भाई कराया ना, ആ करा दिया। ये मंदिर का मेन स्थान सर, जहाँ बुद्ध Okay. को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यही पेड़ को बोलते हैं सर बौद्धि वृक्ष। ഓക്കെ, ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ 4th जनरेशन ट्री है, 4थी पीढ़ी का पेड़ है। ചൗത്തി സ്പീഡ്. तो फर्स्ट ट्री यहीं पर था जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे थे, लेकिन फर्स्ट ट्री को अशोका की वाइफ ने कटवा दिया था, क्योंकि अशोका की जो वाइफ थे वो एंटी बुद्धिज्म थी, बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी। वो नहीं चाहते थे कि सम्राट अशोक राजा इतना बड़ा राजा होकर के एक बौद्ध भिक्षु बने, इसलिए फर्स्ट ट्री को अशोका की वाइफ ने कटवाया। लेकिन सेकंड ट्री उसी रूट से फिर वापस निकल जाता है, तो बंगाल का किंग शशांक कटवा दिए। और जब तीसरा पेड़ पानी पड़ने के बाद फिर से निकल जाता है, तो आंधी वर्षा तूफान से गिर गया। 3 पेड़ नष्ट हो जाने के बाद पहला पेड़ जब कट हुआ, अशोका का एक पुत्र एक पुत्री थे जिनका नाम था महेंद्र और संमित्रा, उनके द्वारा कटा हुआ पेड़ श्रीलंका चला गया था प्रचार ग्रुप में। श्रीलंका अनुराधापुरम में अभी भी ओल्डेस्ट पेड़ मौजूद है। 1880 में ब्रिटिश लॉर्ड कानिंघम आए थे, तो श्रीलंका गए थे, श्रीलंका से उसी का रूट लाए थे, यहाँ लगाए थे। ये पेड़ 140 सोल्ड है, 140 साल पुराना है। ये जो अंदर में एक पालकी बना हुआ जगह दिख रहा है, अंदर में एक पालकी बना हुआ जगह है,
उस प्लेस को बोलते हैं वज्रासन, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ पहला सप्ताह बिताए थे, फर्स्ट वीक में राजकुमार सिद्धार्थ को यहीं पर बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनलाइटमेंट मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए। यही वो मेन प्लेस है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट मिला था। इसी प्लेस को बोलते हैं वज्रासन। ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ, ഇതാണ് നമ്മളെ ബുദ്ധ എൻ്റെ എന്താ ബോധിമാരാട്ടോ, ബോധിമാരാണിത്. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ജ്ഞാനം ചെയ്തതെന്നാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കിട്ടിയത് ജ്ഞാനം കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണെന്ന്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. और ये भगवान बुद्ध का ये फुटप्रिंट बना हुआ है, ये भगवान बुद्ध का पश्चिम है जो अशोक सम्राट बनाए थे 3rd सेंचुरी BC में। 2300 ओल्ड है, 2300 वर्ष पुराना ये भगवान बुद्ध का चरण। ഓക്കെ, കാൽപ്പാതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല. പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. ഇതെന്താ നമുക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഇതുമില്ല കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തുള്ള. ശരിക്കും അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ശരിക്കും ബുദ്ധിസ്റ്റ് എൻ്റെ ശരിക്കും കലാവിരുദ്ധ ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് ബോധ്ഗയയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പറാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും എന്നും ഓർമ്മിക്കാനുള്ള നമ്മളെ ബീഹാറിലുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് നമ്മളെ ബോധ്ഗയ. അടിപൊളിയാണ്, രക്ഷയില്ല. और फर्स्ट वीक ये जगह जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, फर्स्ट वीक में इनलाइटमेंट। लेकिन सामने में ये जो ट्री दिख रहा है, ये जो पेड़ दिख रहा है, ट्री के बैक साइड में छोटा सा मंदिर बना हुआ है। उस प्लेस का नाम है अनिमेष लोचन। अनिमेष का मतलब होता है अपलक दृष्टि से देखना, बिना पलक को झपकाए हुए देखना। और लोचन का मतलब आई, आँख होता है। तो भगवान बुद्ध का 7 दिन 7 रात आँख का पलक नहीं गिरा, और उस जगह से खड़ा होकर के एकाग्र दृष्टि से 7 दिन 7 रात ये बौद्धे वृक्ष को लगातार एकाग्र दृष्टि से देखते रह गए थे। इस पेड़ में क्या खूबी जो हमें 7 दिन में अंदर में ज्ञान प्राप्त हुआ, और मैं 6 साल भटकते रहा, मुझे कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो 7 दिन 7 रात वहाँ से बौद्ध वृक्ष को लगातार कंटिन्यूस देखते रहना। ये भगवान बुद्ध का 3rd मेडिटेशन प्लेस है। ये प्लेस का नाम है चंक्रमन। चंक्रमन का मतलब होता है टहल करके ध्यान करना। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध यहाँ पर 1 सप्ताह टहल करके ध्यान किए। ये पाली मंत्र को रखते थे, वहाँ मिट्टी के ऊपर कमल का चिन्ह, लोटस का चिन्ह बना था। इस पे अशोका ने ये पत्थर पर कमल का चिन्ह बनवाए। ये जो पत्थर पर कमल का चिन्ह बना हुआ दिख रहा है, ये 2300 वर्ष पुराना है। लेकिन बख्तियार खिलजी जिस पत्थर को तोड़वा दिया था, इस टूटे हुए पत्थर को देख रहे हैं, इसी पत्थर को देख के कानिंघम ने ऊपर में कमल का फूल बनवाया। ऊपर में जो कमल का फूल बना हुआ दिख रहा है 140 साल पुराना है, और ये 2300 वर्ष पुराना, ये अशोका द्वारा बनाया गया। भगवान बुद्ध का 3rd प्लेस चंक्रमन, वॉकिंग मेडिटेशन, चंक्रमन। और सेकंड वीक अनिमेष लोचन। अनिमेष उधर में ये रतन है, 4th प्लेस। ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 1st 2nd 3rd 4th അങ്ങനെ ഒരുപാട് भगवान സംഭവങ്ങളുണ്ട്. बुद्ध का ये 4th मेडिटेशन प्लेस है। इस जगह का नाम है रतन घर। ज्ञान प्राप्त के बाद भगवान बुद्ध 4th वीक रतन घर में ध्यान किए, जहाँ उनके शरीर पर 5 तरह का कलर आया, जो पंचशील झंडा देख रहे हैं, बुद्धिस्ट फ्लैग। वो जो 5 कलर का फ्लैग, उसी को पंचशील बोलते हैं। पंचशील का मतलब होता है 5 नियम को पालन करना। भगवान बुद्ध ने बताया कि जो मनुष्य पंचशील को पालन करेगा, उसको कभी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना। भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो मनुष्य पंचशील को पालन करेगा, उसको कभी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो 5 नियम है, उसको पालन करना चाहिए। ये सब जो स्तूपा देख रहे हैं, इसके अंदर में छोटे छोटे जो बड़े बड़े स्तूपा बने हुए हैं, ये मंदिर के प्रांगण में 485 स्तूपाएँ हैं, 485 स्तूपा हैं। इसको बोलते हैं बौद्ध भिक्षु स्तूपा। बौद्धिज्म में जो पहले था, वो आइडियल वर्शिप नहीं था, तो लोग स्तूप बना करके पूजा करते थे। ये 600 मिट्टी के अंदर कवर्ड था। खुदाई जब ब्रिटिश लॉर्ड कानिंघम इस टेम्पल का करवाए, मिट्टी निकलवाएं, तो इसके अंदर से ये सब स्तूपा प्राप्त हुए खुदाई से। ये 485 स्तूपा हैं इस प्रांगण के मंदिर के अंदर में। ओके,
അപ്പോൾ ഇത് നാലാമത്തെ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. मैं भगवान बुद्ध का 5th मेडिटेशन प्लेस दिखाऊंगा जहाँ बुद्ध 5वां सप्ताह बिताए थे। तो मैंने आपको फर्स्ट प्लेस दिखाया, सेकंड दिखाया, थर्ड दिखाया, फोर्थ दिखाया, 5th के पास मैं आपको ले जा रहा हूँ। 5th प्लेस के बाद ये सब वही स्तूपाएँ हैं जो खुदाई से प्राप्त हुए। ओके अभी हम लोग इस तरफ जो देख रहे हैं ये शंकराचार्य के द्वारा इस तरफ हिंदू टेम्पल बनाया गया था। तो ये इस तरफ हिंदू टेम्पल बना हुआ है, हिंदू टेम्पल। सनातन धर्म का मंदिर बना हुआ है। ये कृष्णा ने शिवलिंग। ये जो शिवलिंग है ना, ये शंकराचार्य के शिष्यों के द्वारा स्थापित किया हुआ है। ओके इस तरफ सनातन धर्म का मंदिर बना हुआ है, हिंदू टेम्पल। हिंदू टेम्पल। और इस तरफ जो भगवान बुद्ध का जो सारा प्रतिमा बना हुआ है, ये सारा प्रतिमाएं लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ये सारी प्रतिमाएं गोल्डन पॉलिश किया हुआ है। ये सारा प्रतिमाएं वेस्ट बंगाल के राजा महिपाल बनवाए। ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലത്തെ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല, ഇനി എന്താ അറിയില്ല, നമ്മൾ പോയി നോക്കും. ये भगवान बुद्ध का ये फुट प्रिंट है जो अशोका सम्राट बनाए थे, अशोक सम्राट 3rd सेंचुरी BC में। ओके 2300 वर्ष पुराना भगवान बुद्ध का चरण पादुका। ഓക്കെ ये जो द्वार देख रहे हैं, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ബുദ്ധൻ്റെ കാൽപാദമാണ് കേട്ടത്. ഓക്കെ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ട്, സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട്. ഓക്കെ और अंदर में जो प्रतिमा दिख रहा है वो बुद्ध के रूप में माता अन्नपूर्णा देवी का प्रतिमा। മാതാ अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी। ये जो द्वार देख रहे हैं सर, ये द्वार इंडिकेट करता है कि जब वो इस मार्ग से आ रहे थे तो सिद्धार्थ बन के आए, लेकिन बौद्धि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो लौट रहे थे तो गौतम बुद्ध थे, इसलिए अशोक सम्राट ने इस गेट को बनवाया। ये जो गेट है ये 2300 वर्ष पुराना है, लेकिन 12th सेंचुरी 5 AD में बख्तियार के लिए उधर का पार्ट को डिस्ट्रॉय किया। तो उधर का पार्ट जो देख रहे हैं वो कानिंघम के द्वारा बनाया गया है, रिपेयर किया हुआ है। ये पार्ट ओरिजिनल है। ये जो 2 लेडीज़ का प्रतिमा है, ये सुजाता नाम की लेडीज़ हैं जो राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति होने के पहले खीर खिलाई थी। और इन्होंने खीर खिलाने के बाद मध्यम मार्ग का उपदेश बताई थी। बोली थी बिना को तार को इतना कस के मत कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि उसमें से सूर न निकले। मध्यम मार्ग, मिडिल मार्ग का उपदेश को बताए थे। इन्हीं का हाथ से खीर खाए थे और ये उर्मिला फर्स्ट में आए जहाँ उनको फर्स्ट में ज्ञान की प्राप्ति हुई। डोनेट किया। ये अष्ट धातु का बना हुआ है और इसको मेडिटेशन बिल बोलते हैं। इस मेल का उपयोग थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा में करते हैं माइंड को मेडिटेशन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। സൗണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ, ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ സൗണ്ടുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത്. ये भगवान बुद्ध का ये 5वां सप्ताह है, 5th मेडिटेशन प्लेस है। इस जगह का 5th भी, इस जगह का नाम है अज्जपाल निग्रोध ट्री। अज्जपाल किसे कहते हैं? बकरी पालने वाला, जो गौट बकरी भेड़ पालने वाले जो लोग होते हैं ना, चरवाहा लोग, उनको वो जो भेड़ बकरी पालने वाला लोग होते थे वो यहाँ पर भेड़ बकरी लेकर के आया करते थे, चराया करते थे। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर ध्यान किया करते थे। तो भगवान बुद्ध के समय में एक बड़ा सा वट वृक्ष होता था, बरगद का पेड़ होता था। जब भगवान बुद्ध यहाँ पर ध्यान कर रहे थे तो कुछ ब्राह्मण के बच्चे बुद्ध को बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हर कास्ट का हूँ। तो भगवान बुद्ध बोले थे मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। भगवान बुद्ध यहाँ पर बोले कि कोई भी व्यक्ति या मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। तो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ था वो आंधी तूफान से गिर गया। उसके मेमोरी में अशोका ने ये पिलर बनवाया। ये पिलर 2300 वर्ष पुराना है। भगवान बुद्ध बोले थे मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता। 6th वीक सरोवर चलेंगे, സരോവർ 6th वीक सरोवर, मुक्तिंदा सरोवर। 6ാമത്തെ സ്ഥലം. ये भगवान बुद्ध का ये 6th मेडिटेशन प्लेस है। ये जो प्लेस है ये आर्टिफिशियल रूप से बना दिया गया है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर एक मोचारिम गांव है, जहाँ मोचारिम गांव है जहाँ भगवान बुद्ध 6ठा सप्ताह ध्यान के थे। लेकिन उस समय रोड नहीं था, लोग जा नहीं पाते थे, आ नहीं पाते थे, इसलिए ब्रिटिश लॉर्ड कानिंघम के द्वारा ये प्लेस को आर्टिफिशियल रूप से बना दिया गया है। ये जो भगवान बुद्ध का 6th मेडिटेशन प्लेस है। तो भगवान बुद्ध 6ठा सप्ताह जब जंगल में ध्यान कर रहे थे, अचानक आंधी बरसा तूफान आया। तो बरसा आंधी तूफान से शेषनाग निकल के भगवान बुद्ध को सहायता किए, तब जाके भगवान बुद्ध का मेडिटेशन सफल हुआ। ये जो सरोवर देख रहे हैं ये 1880 में ब्रिटिश लॉर्ड कानिंघम के द्वारा बनाया गया। और पानी के अंदर में जो मूर्ति देख रहे हैं वो 1984 में बर्मा सरकार के द्वारा बनाया गया। ये जो सरोवर है ये गड्ढा बहुत है और इसके अंदर में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, 2-2 केजी 3 केजी का फिश है। बौद्धिज्म में जीव प्राणी का हत्या नहीं करना है, इसलिए मछली को मारा नहीं जाता, खाया जाता है।
तो इस मछली को लोग आते हैं देखने के लिए, तो जो लोग आते हैं उसको देखते हैं और खाने के लिए बिस्किट वगैरह लाते हैं तो डालते हैं। ये भगवान बुद्ध का 6 मेडिटेशन प्लेस है, जहाँ भगवान को 6ठा सप्ताह ध्यान किए तो प्राकृतिक विपदा से नागराज सहायता किए, तब जाके भगवान बुद्ध का मेडिटेशन सफल हुआ। ये सरोवर का नाम है मुचलिन सरोवर। मुचलिन सरोवर जी। प्लेस 7th वीक, लास्ट वीक दिखाऊंगा बुद्धा का 7th वीक। 7th वीक। लास्ट वीक। ये अशोका पिलर है, सम्राट अशोक राजा बनाए थे। लेकिन सम्राट अशोक राजा जब इसको बनवाए थे तब इसका हाइट 100 फीट था, लेकिन 12th सेंचुरी 5 AD में बख्तियार खिलजी जिसको तोड़वा दिया था, तो इसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो खुदाई में ब्रिटिश वाले को मिला, वो कलकत्ता का विक्टोरिया म्यूजियम रखा हुआ है और 15 फीट यहाँ है। ये सैंड स्टोन से बना हुआ है। सम्राट अशोक राजा बनाए थे, अशोक स्तंभ का निर्माण किए थे। അവിടെ എന്തോ പൂജ നടക്കണ്ട കേട്ടോ, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളേതായാലും പോയി നോക്കാം. अब मैं आपको भगवान बुद्ध का ये लास्ट प्लेस बता रहा हूँ। ये लास्ट प्लेस है भगवान बुद्ध का, ये 7th वीक और लास्ट वीक जहाँ भगवान बुद्ध स्पेंड किए, वो प्लेस का नाम राज्यायतन, ये काइंड ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ पर एक जंगली पेड़ लगा हुआ है। भगवान बुद्ध 7वां सप्ताह ये जंगल में 7वां सप्ताह ध्यान कर रहे थे। 7वां सप्ताह जब भगवान बुद्ध इस जंगल में मेडिटेशन कर रहे थे तो बिना खाए पे साधना कर रहे थे। तो बर्मा देश का 2 मर्चेंट, 2 व्यापारी इस जंगल से गुजर रहे थे, जिनका नाम था तपस्विक और बल्लिक नाम व्यापारी। बुद्ध को ध्यान साधना करते हुए देखे तो बुद्ध को देख के उनको दया गया, तो बुद्ध के पास वो बैठ गए और बुद्ध को खाने के लिए उन्होंने हनी राइस केक भगवान बुद्ध को ऑफरिंग किया। हनी राइस केक भगवान बुद्ध ले लेते हैं और खाने के बाद व्यापारियों को भी कुछ देना चाहते थे, तो बुद्ध के पास तो देने के लिए कुछ नहीं था, तो बुद्ध ने अपना सर का 2 बाल और पैर का 2 नाखून काट के व्यापारी को दिए, और सर का बाल और पैर का नाखून देने के बाद बुद्ध ने इस जगह पर 2 मंत्र बुलवाया था दोनों व्यापारियों से, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये जो भगवान बुद्ध का मंत्र है वो इस जगह पर बोला गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध का जो तीसरा मंत्र है संघम शरणम गच्छामि, वो यहाँ नहीं बोला गया था। भगवान बुद्ध का जो तीसरा मंत्र है संघम शरणम गच्छामि, वो सारनाथ में बोला गया, क्योंकि भगवान बुद्ध का संगठन जो बना था वो सारनाथ में बना था। तो संघम शरणम गच्छामि का जो मंत्र है वो सारनाथ में बोला गया, और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्र यहाँ बोला गया। ये भगवान बुद्ध का 7वां सप्ताह, ये प्लेस का नाम राज्यायतन। तो बुद्धिज्म में 4 प्लेस काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है, उसमें से फर्स्ट प्लेस आता है नेपाल का लुम्बिनी वन, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सेकंड प्लेस बोध गया, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। थर्ड प्लेस सारनाथ, जहाँ पर वो फर्स्ट टीचिंग दिए, और चौथा प्लेस कुशीनगर, जहाँ महात्मा बुद्ध का समाधि हुआ। स्लीपिंग बुद्धा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश यूपी कुशीनगर। ठीक है, बंद कर दीजिए। ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളേതായാലും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളേതായാലും 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഫുൾ വിവരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഭയ്യനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. आपका नाम? मेरा नाम सर राजीव कुमार मिश्रा है। राजीव कुमार मिश्रा फ्रॉम? मैं बोध गया का हूँ। बोध गया। ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ എത്ര വർഷമാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. कितना ईयर जी? कितना ईयर? मेरा उम्र नहीं इधर में मैं यहाँ पर 5 साल से बता रहा हूँ। 5 साल. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 വർഷം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഗൈഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ കേട്ടോ, നല്ല രീതിക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല തിരക്കാട്ടോ, നല്ല തിരക്കാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. നമ്മളെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മളെ ഇതുണ്ടല്ലോ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാഗും ഫോണും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ വെച്ച സ്ഥലം, നമ്മളെ കീ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
നമ്മളേതായാലും പോയിട്ട് വരാം.